السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا بھائی، ہم لوگ پڑھ رہے تھے واقعہ اف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تہمت لگائی گئی تھی اس کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے. تو اب ہم بالکل آلموسٹ اینڈنگ پر ہی پہنچ گئے تھے. بس بالکل ہی بریف والا ریکیپ کر دیتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک غزوے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے جا رہے تھے تو وہاں راستے میں پھر جو ہے ان کو دیر ہو گئی تھی. تو جو ہے جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے تو جو ہے وہ نکل گئے تھے آگے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ جو ہودج جو ڈولی نما وہ ایک بنا ہوتا ہے جس کو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے اس میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہ آگے نکل گئے وہ لے کر، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں نہیں تھی تو وہ پیچھے رہ گئی. تو پھر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو جو ہے لے کر آ رہے تھے وہاں پر. تو پھر جو ہے یہ ہوا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو ان پر تہمت لگائی گئی. اس کے بعد پھر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تقریباً 1 مہینے کے عرصے کے لیے بیمار پڑ گئی تھی. تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پورے مدینہ بھر میں ان پر تہمت لگائی جا رہی ہے. تو ان کو بالکل بھی اس کا آئیڈیا نہیں تھا. تو 1 مہینے کے بعد جب وہ ریکور کر گئی اپنی بیماری سے، انہیں پتہ چلا تو پھر وہ اپنے والدین کے پاس گئیں کہ وہ وہاں جا کے کنفرم کریں. اور پھر ان کو جب کنفرمیشن ملی کہ واقعی میں ایسا ہے کہ اتنا زیادہ ان کے خلاف غلط غلط باتیں مدینہ بھر میں ہو رہی ہیں، اور یہ سارا کا سارا چرچا بہت سارے لوگ کر رہے تھے، جن میں سے ان کا لیڈر عبداللہ بن ابی تھا جو منافقوں کا سردار تھا. تو پھر ان کو جب پتہ چلا بہت وہ پھر روئی، اور بالکل نہ ان کو نیند آتی تھی نہ ان کے آنسو رکتے تھے، اس طرح کی کیفیت میں تھی. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی تھی جس میں جو ہے یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مطلب ان پر جو الزام لگایا گیا تھا تو اس کی پوری کلیئرنس آ گئی تھی. اچھا، پھر جو ہے یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اور ہاں سورہ نور ہاں سورہ نور کی جو 10 آیات تھی اس حوالے سے جو نازل ہوئی تھی تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. اب ہم آگے سے پڑھیں گے، یعنی کہ جو بالکل لاسٹ لائن ہے نا یہاں سے پڑھیں گے. تو اگر کوئی ریڈ کرنا چاہ رہا ہے تو بتائیے گا. ٹھیک ہے، میں اسٹارٹ کر دیتی ہوں. اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مستح بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم کو 80 کوڑے مارے گئے. اچھا، نیچے کیا لکھا ہے حاشیہ میں؟ اسلامی قانون یہی ہے کہ جو شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور ثبوت نہ پیش کرے اسے یعنی اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. صحیح. البتہ خبیث عبداللہ بن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا. اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عظیم عذاب دینے کا اعلان فرما دیا تھا، یا پھر وہی مصلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا. نمبر 11. اچھا، نیچے حوالہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی حد لگائی گئی تھی. اچھا، یہ حد لگائی گئی، یہ کوئی بتا سکتے ہیں حد لگائی گئی ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے جس کے بارے میں جیسے بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ جو ہے مطلب اس کو تو بہت بڑا عذاب ہونے والا ہے آخرت میں نا. تو جب ہمیں دنیا میں کسی چیز کا بھی سزا مل رہی ہوتی ہے یا عذاب مل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آخرت میں اس میں کمی ہو جاتی ہے نا اس سزا میں. تو یہ ایک تو یہ بات کی گئی ہے. اور حد لگانا اگر کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے کہ حد لگانے کا مطلب فرحین یہ ہے کہ آرڈر پاس کر دیا کہ اسے کوڑے لگے. لیکن حد نہیں لگائی گئی نا یہاں پہ، تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اس جی، پر حد لگائی لیکن گئی تھی. اینڈ میں جو انہوں نے حافظ ابن حجر کی کا ذکر کیا نا کہ انہوں نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ اس کو بھی حد لگائی گئی، یعنی کہ جنرل کنسنسس یہ ہے کہ اس کو نہیں لگی تھی اچھا حد، لیکن اینڈ میں لاسٹ لائن میں انہوں نے کہا ہے کہ شاید مطلب ایک روایت ایسی آ رہی ہے ہمیں مل رہی ہے کہ جس میں ہے کہ شاید اسے حد لگی تھی. اچھا، مطلب اس کو بھی 80 کوڑے لگے ہوں گے پھر ایک روایت کے مطابق، یہ کہہ رہی ہے نا؟ جی جی جی. اچھا، چلے صحیح ہے، صحیح، ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر بتا رہے ہیں کہ اور بھی لوگ جو آگے آگے تھے ان میں یہ جو 3 نام بتائے ہیں، مستح بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم. ٹھیک ہے. اور اس پیراگراف میں کوئی ایسی بات ہے جو کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس حوالے سے؟ جی میں ٹھیک ہے. کہوں یہ گی، تو جی سوری.
वेल मैं अभी आई हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया, आई डोंट नो कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन ये कि मैं इनके हवाले से ही बोलूँगी। हजरत हमना जो थी, हमना बिनते जहाश, ये हजरत जैनब बिनते जहाश उनकी सिस्टर थी, तो हजरत आयशा उनकी बहन की सोकन थी। तो एक शायद ये वजह भी थी कि उन्होंने ये बात इस तरह की। और इनके बारे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न भी थी, फूफीजाद बहन थी। हमने इनके बारे में पीछे पढ़ा था ओहद में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया था कि इनके मामू हमजा रदी अल्लाह अन्हा वो शहीद हुए हैं उधर, उनका मुसला भी हुआ है, उन्होंने उस पर सब्र किया था। फिर उनके भाई थे अब्दुल्ला बिन जहश, उन पे भी उन्होंने सब्र किया था। लेकिन जब हस्बैंड की बात आई थी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा, तो ये शदीद यानी कि गम में आ गई, तो यानी कि थोड़ा सा दुख का अपना इजहार भी किया था, थोड़ा चीखी थी, कुछ इस तरह करके था। तो इन्हें भी ये कोड़े लगाए थे। ये औरतों में हजरत हसान और हजरत मिस्ता तो मर्दों में, ये हजरत हमना। लेकिन जब हजरत जैनब बिनते जहश वो हजरत आयशा की सोकन थी, तो जैसे हम लोग सोकनों को देखते हैं हमारी सोसाइटी में जैसे होते हैं बिहेवियर्स, लेकिन जब उनसे पूछा गया हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के किरदार के हवाले से, तो उन्होंने बोला कि मैंने कभी उनमें कोई ऐसी गलत बदकिरदारी वाली कोई ऐसी उनमें देखी नहीं है रविश कि वो ऐसे करे। किनसे पूछा गया? किनसे पूछा हजरत गया? जैनब, हमना बिन नो नो, अच्छा, इनकी हजरत जैनब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम हजरत जैनब उम्मुल मोमिनीन। अच्छा, ओके ओके, अच्छा, सही सही। अच्छा, नहीं ये जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दिया आपने, जज़ाकिल्लाह खैरा। सही। और यहाँ पे कोई कुछ एडिशन करना चाहेगा या कोई कुछ कहना चाहेगा? चलिए आगे चलते हैं। ये वाला पैराग्राफ हो गया, अब ये लास्ट पैराग्राफ है, क्या है? इस तरह एक महीने के बाद मदीने की फिजा शक व शुबहे और कल्क व इस्तराब के बादलों से साफ हो गई, और अब्दुल्ला बिन उबई इस तरह रुसवा हुआ कि दोबारा सर ना उठा सका। इब्न इसहाक कहते हैं कि इसके बाद जब वो कोई गड़बड़ करता तो खुद उसकी कौम के लोग उसे अताब करते। अताब करते क्या था? बुरा भला बोलना मेरे ख्याल से। अच्छा, जी जी, ठीक है, उसे तो बुरा भला करना, मलामत करना। ओके ओके, उसे अताब करते, उसकी अपनी कौम के लोग उसकी गिरफ्त करते और उससे सख्त सुस्त कहते। इस कैफियत को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए उमर, क्या ख्याल है? देखो, वल्लाही अगर तुमने इस शख्स को उस दिन कत्ल कर दिया होता जिस दिन तुमने मुझसे इसे कत्ल करने की बात कही थी, तो उसके बहुत से हमदर्द उठ खड़े होते। लेकिन अगर आज उन्हीं हमदर्दों को इसके कत्ल का हुक्म दिया जाए तो वो इसे कत्ल कर देंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, वल्लाही मेरी समझ में खूब आ गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला मेरे मामले से ज्यादा बाबरकत है। क्या हुआ था? जो कत्ल करने की बात हुई थी, जो ये बता रहे हैं कि जब कहा था तुमने ने, तो बस उस वक्त मना किया था ना कि लोग कहेंगे कि भाई ये तो अपने साथियों को ही कत्ल करने का हुक्म दे रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाकया वाला याद है किसी को एग्जैक्टली कब ये वाली बात हुई थी जो पास तुम कह रहे हैं ना कि उस वक्त अगर कत्ल कर देते तो लोग फिर जाहिर है हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन अब तो वही लोग हैं कि उनको बोला जाए तो आगे बढ़ के खुद ये ही कत्ल करेंगे अभी उसका। जो पीछे गुजरा था अरकम बिन अरकम बिन अभी अरकम, उनके जब उन्होंने जैद जैद बिन बताया था अरकम। जैद, सॉरी अच्छा अच्छा जैद बिन अच्छा। अरकम जी, उन्होंने जब जी जी बताया जी था जी। कि वो इस तरह कह रहे, तो तब हजरत उमर ने बोला था कि मैं उन्हें कत्ल कर देता हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, मेरे ख्याल से वो जैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी कि वो जब मुहाजिरीन और अंसार के आपस में फूट पड़वा रहा था कि भाई नहीं ये तुम लोगों ने नहीं ही तो नहीं नहीं उनको नहीं रखा। नहीं नहीं वो नहीं, नहीं। जैद बिन अरकम वो यंग सहाबी थे ना, उन्होंने आके बताया था कि अब्दुल्ला बिन उबई इस तरह कह रहा है नबी पाक सल्लम के बारे में कि हम में से जो इज्जत वाला है वो जिल्लत वालों को निकाले गए, और इस तरह करके बातें की थी ना। जी 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 उ, जी उसके जी। बाद वही वाला वाकया था ना, कि जिसमें नहीं वो जो आपस में चश्मे के ऊपर लड़ाई हो गई थी, जी तो जी उन्होंने कहा था कि तुम लोग ने ये मुहाजिरीन को इधर रखा हुआ है ना, इनकी हेल्प करो, तो नहीं करोगे तो ये निकल ही जाएंगे यहाँ से, फिर वो जी इज्जत वाला जो है जिल्लत वाले को निकाल देगा, इस तरह से ये एक ही कंटिन्यूएशन में नहीं थे? जी जी, ये रिलेटेड है, लेकिन आई मीन के जैन बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने उनकी बात को यानी कि उन्होंने आके बताया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को कि इसने ऐसे बोला है, तो वो फिर थोड़ा उसको यंग करके, यंग है इसको सुनने में गलती होगी,
यहाँ लेकिन वो दोनों रिलेटेड है, ये वो चश्मे वाला और ये। सही सही सही। एक मिनट, इसको ना मैं ओपन भी कर लेती हूँ ताकि वो, एक मिनट रुकिएगा। साके की खबर। हाँ, ये जो था ना मदीने से जलील तरीन आदमी को निकालने की बात, ये वाला जो नीचे देखें, नीचे जो हो रहा है कि वो एक चश्मे के ऊपर जो मुहाजिरीन और अंसार, एक मुहाजिरीन में से कोई एक और एक अंसार में से एक ना, तो आपस में उनमें थोड़ी धक्कम धक्का हो गई थी। तो फिर जो है वो उन्होंने कहा था, जो मुहाजिर थे उन्होंने कहा था कि ए मुहाजिरीन के लोगों आओ मेरी मदद करो, और जो अंसार के थे उन्होंने कहा था कि अंसार के लोगों आओ मेरी मदद करो। तो फिर जो है बता रहे हैं कि इस तरह से थोड़ी सी वहां पे लड़ाई का माहौल क्रिएट हो गया। तो अब्दुल्ला बिन उबई को ये खबर मिली थी, ऊपर देखें तो गुस्से से वो भड़क उठा था, और फिर उसने जो है यही सब बातें कहना शुरू कर दी थी ना कि भाई जो है तुम लोगों ने इनको यहाँ पे रखा हुआ है, तुम इनकी मदद करना छोड़ दो, ये यहाँ से निकल जाएंगे, ये तुम्हारे ही शहर है अपना, तुम लोगों ने इनको रखा है, अब देखो ये मतलब कि तुम लोग ने इनको हेल्प करी है, अब ये तुम्ही लोग के सामने से आ रहे हैं ना, मतलब कि तुम लोग के मुकाबले पर आ रहे हैं। तो फिर जो सेकंड पैराग्राफ में बताया ना, हजरत जैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, उन्होंने ये सारी बातें सुनी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जाके ना कि ये इस तरह कर रहा है। तो उस वक्त इसी पैराग्राफ में मेरे ख्याल से है, ऐसा करके मैं इसको रीड कर देती हूँ, एक मिनट। इस वक्त ये मजलिस इसी में में, एक सॉरी नौजवान, जी जी जी, इधर से ही, हाँ जी सही, सॉरी जी जी, हाँ इधर वैसे से ही ही। कह रहे, सही है, ठीक है। इस वक्त मजलिस में एक नौजवान सहाबी हजरत जैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने आकर अपने चचा को पूरी बात कह सुनाई। उनके चचा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। बोले, हुजूर, इबाद बिन बिश्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहिए कि इसे कत्ल कर दे। अच्छा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, ये कैसे मुनासिब रहेगा? लोग कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल कर रहा है। नहीं, बल्कि तुम पूछ का ऐलान कर दो। सही। तो इसमें फिर ये बता रहे हैं कि जो है उन्होंने हज़रत उमर इस तरह सजेशन दिया था कि अब्दुल्ला बिन उबई को कत्ल कर देना, क्योंकि वो उसकी बिल्कुल लिमिट्स क्रॉस किए ही चला जा रहा था ना। तो अब तो मतलब यहाँ तक बात आ गई थी कि मुहाजिरीन को भी मदीने से निकालने की बात करने पे आ गया था ये। तो जो है मदीने से, तो फिर जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था उस वक्त कि भाई, उस वक्त जाहिर सी बात है सब लोग के सामने खुली तो नहीं थी ना इसकी मुनाफिकत। तो लोग तो यही कहते हैं ये तो मुसलमान है, और लोग भाई ये तो अपने मुसलमान भाइयों को ही कत्ल करने लग गए हैं मुसलमान। तो उस वक्त जो है वो एक कितना गलत इंप्रेशन चला जाता है लोगों के ऊपर। और अब जब बता रहे हैं कि ये देखें, अब मैं ये अभी वाले वर्ड दोबारा पढ़ देती हूँ, एक सेकेंड। ये है, इस तरह एक महीने के बाद मदीने की फिजा शक व शुबे और कल्को इस्तराब के बादलों से साफ हो गई, और अब्दुल्ला बिन उबई इस तरह रुसवा हुआ कि दोबारा सर ना उठा सका। ठीक है ना, क्योंकि अब तो बाकायदा आयात नाजिल हो गई थी ना कुरान पाक में, जो उसने प्रोपेगेंडा किया था उसके अगेंस्ट। इब्ने इसहाक कहते हैं कि इसके बाद जब वो कोई गड़बड़ करता तो खुद उसकी कौम के लोग उसे अताब करते, उसकी गिरफ्त करते और उससे सख्त सुस्त कहते। फिर जो है बता रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को बताया कि अगर उस वक्त ये वाली सारी बात होती और उस वक्त इसको कत्ल कर दिया जाता, तो सबको लगता कि भाई नाहक कत्ल किया है और मजलूम मर गया है, और ये यही सब बातें होती ना फिर। और अब तो उसकी अपनी कौम के लोग ही जो है उसकी हकीकत जान गए हैं, तो जाहिर है अब वो एक्शन लेना अलग बात हो जाती और उस वक्त लेना अलग। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी कि उस वक्त उन्होंने जाने दिया था कि नहीं, अभी नहीं। तो फिर यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला आगे बता रहे हैं कि ए रसूलुल्लाह नहीं, क्या है कि वल्लाही मेरी समझ में खूब आ गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला मेरे मामले से ज्यादा बाबरकत है। चले, अच्छा, अब एक चीज जो मैं चाह रही थी वो ये था कि जो सही बुखारी की हदीस नंबर 4141 है ना, उसमें हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये पूरा वाकया जितना सीरत की किताब में लिखा है, इससे बहुत ज्यादा डिटेल में पूरा ये वाकया ना, यानी यहाँ पे तो एक एक लाइन समझे उस हदीस की आई है, और उस हदीस में और बहुत ज्यादा डिटेल्स आई हुई है इस वाकये की ना। लेकिन अभी मैं स्टार्ट करूंगी ना तो अच्छा शायद हो भी जाए, चलिए मैं कर देती हूँ ऐसे। एक सेकंड से शेयर ट्राई कर लेते हैं, हदीस आज कवर हो जाए। मैं जी, कोई रीड करना चाहेगा तो बता दीजिए, नहीं तो मैं स्टार्ट कर लूंगी। ये देखिए, ये पूरी हदीस है इसके ऊपर, इस वाक़े के ऊपर। अच्छा जी। कहाँ था? हाँ, यहाँ से। लव्स इफ नज्स और नजस की तरह है, बोलते हैं
इफ्कहुम, सूरह अहकाफ में आया है वज़ालिका इफ्कहुम, वो बकसरे हमजा है और ये बफतह हमजा सुकून होना चाहिए पूरा इसकी अरबी की। अच्छा और अफकहुम ये बफतहा हमजा वफा भी है और काफ पढ़ा है, तो तर्जुमा यूं होगा, उसने उनको ईमान से फेर दिया और झूठा बनाया, जैसे सूरह वज़ारियात में ये मैं इसको जबरजेर गलत ना कर जाऊं, अरबिक नहीं पढ़ती फिर, है यानी कुरान से वही मुनहरिफ होता है जो अल्लाह के इल्म में मुनहरिफ करार पा चुका है। जब अहले इफ्क यानी तोहमत लगाने वालों ने उनके मुतालिक वो सब कुछ कहा जो उन्हें कहना था, इब्न शहाब ने बयान किया कि तमाम हजरात ने जिन चार हजरात के नाम उन्होंने रिवायत के सिलसिले में लिए हैं, मुझसे आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस का एक एक टुकड़ा बयान किया। ये भी था कि इनमें से बास को ये किस्सा ज्यादा बेहतर तरीके पर याद था और उम्दगी से यह किस्सा बयान करता था, और मैंने उनमें से हर एक की रिवायत याद रखी जो उसने आयशा रजी अल्लाह अन्हा से याद रखी थी। अगरचे बाज लोगों को दूसरे लोगों के मुकाबले में रिवायत ज्यादा बेहतर तरीके पर याद थी, फिर भी उनमें बाहम एक की रिवायत दूसरे की रिवायत की तस्दीक करती है। इन लोगों ने बयान किया कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर का इरादा करते तो अज़वाज मुतहरात रजी अल्लाह अन्हुन्ना के दरमियान कुरा डाला करते थे, और जिसका नाम आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने साथ सफर में ले जाते। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि एक गज़वे के मौके पर जब आपने कुरान डाला तो मेरा नाम निकला और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में रवाना हुई। ये वाकया पर्दे के हुक्म के नाजिल होने के बाद का है। चुनान जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं कर देती हूँ, एक सेकंड। अच्छा, ये वाकया पर्दे के हुक्म के नाजिल होने के बाद का है। चुनांचे मुझे होदिज समेत उठाकर सवार कर दिया जाता और उसी के साथ उतारा जाता। इस तरह हम रवाना हुए। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस गज़वे से फारिग हो गए तो वापस हुए। वापसी में अब हम मदीना के करीब थे और एक मुकाम पर पड़ाव था जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का रात में ऐलान किया। कूच का ऐलान हो चुका था तो मैं खड़ी हुई और थोड़ी दूर चलकर लश्कर के हुदूद से आगे निकल गई। फिर क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर मैं अपनी सवारी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर जो मैंने अपना सीना टटोला तो ज़िफ़ार यमन का एक शहर के मुहरा का बना हुआ मेरा हार गायब था। अब मैं फिर वापस हुई और अपना हार तलाश करने लगी। इस तलाश में देर हो गई। उन्होंने बयान किया कि जो लोग मुझे सवार किया करते थे वो आए और मेरे होदिज को उठाकर उन्होंने मेरे ऊंट पर रख दिया जिस पर मैं सवार हुआ करती थी। उन्होंने समझा कि मैं होदिज के अंदर ही मौजूद हूँ। इन दिनों औरतें बहुत हल्की फुल्की थीं। उनके जिस्म में ज्यादा गोश्त नहीं होता था क्योंकि बहुत मामूली खुराक उन्हें मिलती थी। इसलिए उठाने वालों ने जब उठाया तो होदिज के हल्केपन में उन्हें कोई फर्क मालूम नहीं हुआ। यूं भी उस वक्त मैं एक कम उम्र लड़की थी। गर्ज ऊंट को उठाकर वो भी रवाना हो गए। जब लश्कर गुजर गया तो मुझे भी अपना हार मिल गया। मैं डेरे पर आई तो वहां कोई भी ना था, ना पुकारने वाला ना जवाब देने वाला। इसलिए मैं वहां आई जहां मेरा असल डेरा था। मुझे यकीन था कि जल्द ही मेरे ना होने का उन्हें इल्म हो जाएगा और मुझे लेने के लिए वो वापस लौट आएंगे। अपनी जगह पर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सफवान बिन मोतल, सलमा कुवानी रजी अल्लाह अन्हु लश्कर के पीछे पीछे आ रहे थे ताकि लश्कर की कोई चीज गुम हो गई हो तो वो उठा लें। उन्होंने एक सोए इंसान का साया देखा और जब करीब आकर मुझे देखा तो पहचान गए। पर्दे से पहले वो मुझे देख चुके थे। मुझे जब वो पहचान गए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना शुरू किया और उनकी आवाज से मैं जाग उठी और फौरन अपनी चादर से मैंने अपना चेहरा छुपा लिया। इतना क्लियर तो आया, फिर लोग क्या बातें कर रहे होते हैं कि चेहरा छुपाने की कोई बात नहीं। अच्छा, और उनकी आवाज से मैं जाग उठी और फौरन अपनी चादर से मैंने अपना चेहरा छुपा लिया। खुदा की कसम
میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ سوا ان اللہ کہ میں نے ان کی زبان سے کوئی لفظ سنا۔ وہ سواری سے اتر گئے اور اسے انہوں نے بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگ کو موڑ دیا تاکہ بغیر کسی مدد کے ام المومنین اس پر سوار ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ میں اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر چلے۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا۔ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر جس سے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اصل میں تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق نے اٹھا رکھا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس تہمت کا چرچا کرتا اور اس کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوا کرتا۔ وہ اس کی تصدیق کرتا، خوب غور اور توجہ سے سنتا اور پھیلانے کے لیے خوب کھود کرید کرتا۔ عروہ نے پہلی سند کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ حسان بن ثابت، مستح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جحش کے سوا تہمت لگانے میں شریک کسی کا بھی نام نہیں لیا کہ مجھے ان کا علم ہوتا، اگرچہ اس میں شریک ہونے والے بہت سے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ بہت سے ہیں، لیکن اس معاملے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر بڑی خفگی کا اظہار کرتی تھی۔ اگر ان کے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا، آپ فرماتی کہ یہ شعر حسان ہی نے کہا ہے کہ میرے والد اور میرے والد کے والد اور میری عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے تمہارے سامنے ڈھال بنی رہیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی میں جو بیمار پڑی تو 1 مہینے تک بیمار ہی رہی۔ اس عرصے میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن میں ایک بات بھی نہیں سمجھ رہی تھی، البتہ اپنے مرض کے دوران ایک چیز سے مجھے بڑا شبہ ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت و عنایت میں نہیں محسوس کرتی تھی جس کو پہلے جب بھی بیمار ہوتی میں دیکھ چکی تھی۔ آپ میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے کیسی طبیعت ہے، صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا، لیکن شر جو پھیل چکا تھا اس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ مرض سے جب افاقہ ہوا تو میں ام مستح کے ساتھ مناصے کی طرف گئی۔ مناصے مدینے کی آبادی سے باہر ہمارے رفع حاجت کی جگہ تھی۔ ہم یہاں صرف رات کے وقت جاتے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بن گئے تھے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ ابھی ہم عرب قدیم کے طریقے پر عمل کرتے اور میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور ہمیں اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بنائے جائیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ الغرض میں اور ام مستح رفع حاجت کے لیے گئے۔ ام مستح ابی رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ صخر بن عامر کی بیٹی ہیں اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہوتی ہیں۔ انہی کے بیٹے مستح بن اثاثہ بن عباد بن مطلب رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر میں اور ام مستح حاجت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ام مستح اپنی چادر میں الجھ گئی اور ان کی زبان سے نکلا کہ مستح ذلیل ہو۔ میں نے کہا آپ نے بری بات زبان سے نکالی، ایک ایسے شخص کو آپ برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس پر کہا کیوں مستح کی باتیں تم نے نہیں سنی؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ بیان کیا پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں سنائی۔ بیان کیا کہ ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد دریافت فرمائے کہ کیسی طبیعت ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی والدہ سے گھر جا کر پوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کر، خدا کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو
اور اس کی सौकनें भी हों और फिर उस पर तोहमतें ना लगाई गई, उसकी ऐब जुई ना की गई हो। उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया कि मैंने इस पर कहा कि सुभान अल्लाह, मेरी सौकनों से इसका क्या ताल्लुक, उसका तो आम लोगों में चर्चा है। उन्होंने बयान किया कि इधर फिर जो मैंने रोना शुरू किया तो रात भर रोती रही, इस तरह सुबह हो गई और मेरे आंसू किसी तरह ना थमते थे और ना नींद ही आती थी। बयान किया कि इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु और उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को अपनी बीवी को अलहदा करने के मुतालिक मशवरा करने के लिए बुलाया, क्योंकि इस सिलसिले में अब तक आप पर वही नाजिल नहीं हुई थी। बयान किया कि उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी के मुताबिक मशवरा दिया जो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मुराद खुद अपनी जात से है कि पाकीज़गी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मोहब्बत के मुतालिक जानते थे। चुनांचे उन्होंने कहा कि आपकी बीवी में मुझे खैर और भलाई के सिवा और कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने आप पर कोई तंगी नहीं रखी है और औरतें भी उनके अलावा बहुत हैं। आप उनकी बांदी बरीरा रजी अल्लाह अन्हा से भी दरियाफ्त फरमा लें, वो हकीकत हाल बयान कर देगी। बयान किया कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और उनसे दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुमने कोई ऐसी बात देखी है जिससे तुम्हें आयशा पर शुबा हुआ हो। हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस किया, मैंने उनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो बुरी हो। इतनी बात जरूर है कि वो एक नौउम्र लड़की है, आटा गूंद कर सो जाती हैं और बकरी आकर उसे खा जाती है। उन्होंने बयान किया कि उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम को खिताब किया और मिंबर पर खड़े होकर अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक का मामला रखा। आपने फरमाया, ए ग्रोह मुस्लिमीन, उस शख्स के बारे में मेरी कौन मदद करेगा जिसकी अजियतें अब मेरी बीवी के मामले तक पहुंच गई हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं कितना है। ज्यादा है तो फिर हम इस हदीस को कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम खत्म। काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन है तो इस हदीस को यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। फिर आगे यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेंगे। सही, चलिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबके सेशन में आने का। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।